Welcome students, welcome to Northeast PSC. In our today's topic, we are going to discuss about the Western Ghats के किस तरीके से हमारा फॉरेस्ट जो है वो लॉस हो रहा है. That is not loss students, that is loss. Okay, कहीं गायब नहीं हो गया है, ठीक है, चोरी नहीं हो गया. That is just loss. Okay, we have decreased, we have lost certain section of the or the percentage of the forest cover in the Western Ghats. Okay, so before going further, we first have to understand that what is the meaning of Western Ghats. But if you divide the geographical division, okay, if I say that is the geographical division of our very pretty country India, geographical divisions, okay, so it has been divided into the six important parts. Okay, what are those parts? Number one is the mountain, then we have is the plateau, the plains, the desert, we have the coastal plains and the island. Okay, these are the important things. अब इन सब में कहीं पे भी हमें वेस्टर्न घाट्स या वर्ल्ड घाट्स तो दिख नहीं रहा है भाई. ओके, वी आर गेटिंग माउंटेन्स, वी आर गेटिंग द प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स दैट दिस पर्टिकुलर थिंग व्हिच इज द प्लेट्यू, प्लेट्यू के अंदर में ही आपका वेस्टर्न घाट्स आता है. सो व्हाट आर द प्लेट्यूज? प्लेट्यूज आपके टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, टेबल लाइक आपके अपलैंड्स होते हैं ऐसे. सो जो आपका डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप और द डेक्कन प्लेट्यू व्हिच इज आल्सो नोन एज डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के पास में आपके माउंटेन पासेस हैं. क्या है आपके स्टूडेंट्स? माउंटेन पासेस हैं. एंड दोस माउंटेन पासेस आर नोन एज वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट. So what are these western and eastern ghats? They are the mountain passes of the Deccan Plateau. Or in short, I can say that the mountain passes in the which provides the mountain passes of the Deccan Plateau are known as the Western Ghats and the Eastern Ghats. Western Ghats being in the west of the Deccan Plateau and the Eastern Ghats being in the east of the Deccan Plateau. Okay, so now why these Western Ghats? Okay, not the Eastern Ghats, but the Western Ghats are very much more into the news. Okay, recently they are into the news. So what is the reason for them being in the news? So students, the most important thing, as you also see in the cover page, that is the loss. Okay, that is not loss, but that is the loss. Okay, that there is a loss of evergreen forest in the Western Ghats. Western Ghats में हमारा जो forest cover है, okay, the forest cover means आपका वन का जो आपका एरिया है, जो क्षेत्रफल है इसका, वो बेसिकली कम होता जा रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज दैट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? न्यूज में क्या आया है? दैट इज द वेस्टर्न घाट हैड एक्सपीरियंस द 5% लॉस इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर with an increase in the inbuilt and the agricultural area according to the spatio-temporal analysis of land use. Okay, so that is a proper statement by the news. Now what does that term refers to? स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमने एक चीज नोटिस किया हाल फिलहाल में. स्पेशियो टेम्पोरल मीन्स किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने नहीं निकाला है. दैट इज दी हमारे स्पेस में जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, जो हमारी सैटेलाइट इमेजरीज आती हैं, जो हमारी स्पेस से हमें मिलती हैं इमेजरीज, उनके थ्रू पता चला है कि वेस्टर्न घाट्स में ऑलमोस्ट 5%, 5% अपना एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर, एवरग्रीन मीन्स सदाहरा, सदाहरा जो कि आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट से पाए जाते हैं, उनका 5% लॉस हो चुका है. Now people are considered that 5% is such a small amount. 5%, still we have the major 95%. But students, when it comes to the actual reality, even this 5% matters for the entire world. This 5% forest cover matters not for the entire world. Don't consider the world, but this matter for India. ओके, बिकॉज ये 5% जो आपका एरिया होता है, ये आपके प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एंडेमिक स्पीशीज, योर रेयर स्पीशीज, योर वल्नरेबल स्पीशीज, इन सबका ये क्या होता है? आपका हैबिटेट होता है. और जब किसी का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, छोटा फ्लड आए भली बड़ा फ्लड आए, इंसानों के घर डूबते हैं. ओके, और जिसका जो लॉस होता है वो तो लॉस लॉस ही कंसिडर किया जाता है, राइट? द सेम वे फॉरेस्ट कवर आपका अगर गायब हुआ है तो वो फॉरेस्ट कवर गायब ही माना जाएगा. सो व्हाट इज द स्टडीज? द स्टडीज सेज दैट देयर हैज बीन द 5% लॉस इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है स्टूडेंट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द बिल्टअप एरिया, जो हमारा कॉन्क्रीटाइजेशन है. ओके, कॉन्क्रीट लैंड जो हमारी है, दैट हैज बीन इंक्रीजिंग. ओके, कॉन्क्रीट लैंड हमारी बढ़ती जा रही है, ह्यूमंस का सेटलमेंट बढ़ता जा रहा है फॉरेस्ट एरिया की तरफ में. एंड सेकंड इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. वी आर कन्वर्टिंग द फॉरेस्ट इनटू द एग्रीकल्चरल फील्ड्स. ओके, हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इनको कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जिसके चलते हमारा फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जो रीजन हमारे हैं, जो हमारा क्रॉप कल्टीवेशन है, वो बढ़ता जा रहा है. ओके, तो इनके चलते हमारा क्या हो रहा है? फॉरेस्ट कवर जो है वेस्टर्न घाट्स में वो हमेशा कम होता जा रहा है. सो व्हाट आर द फाइंडिंग्स टोल्ड अस? बेसिकली फाइंडिंग्स ने हमें बताया है दैट ओनली द 25% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड मास कंसिस्ट द इंटीरियर फॉरेस्ट, इंडिकेटिंग द फ्रेगमेंटेशन, प्रेशर एंड इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोलॉजी.
ओके, सो व्हाट दैट रेफर्स टू, केवल आपका 25% लैंड ही आपका बचा हुआ है, फॉरेस्ट लैंड मास जो है वो बचा हुआ है, जिसके पास सबसे क्रूशियल पार्ट है, दैट इज हैविंग द क्रूशियल पार्ट। ओके, 5% गायब हो चुका, बचा कितना 95। इस 95 में से ओनली 25% जो है दैट इज यूजफुल, द रिमेनिंग 70% इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज नॉट हैविंग द इंटीरियर फॉरेस्ट, उनके पास उतना फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट है बट फॉर एग्जाम्पल द कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांट मे बी less as compared to this particular 25%. Okay, that is the first thing. Second is that is the there has been a large scale land change. हमारे पास सेंचुरी, जो हमारा सेंचुरीज हैं, जो सेंचुरीज चलती आ रही है, वहां पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा लैंड यूज चेंज होता जा रहा है स्टूडेंट्स। लैंड यूज चेंज का मतलब हो रहा है कि लोगों का लैंड को इस्तेमाल करने के तरीके बदलते जा रहे हैं। क्या पता पहले इंसान लैंड को इस्तेमाल करते हो फॉरेस्ट के लिए, धीरे धीरे आए एग्रीकल्चर में, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना परमानेंट सेटलमेंट, सेटलमेंट के बाद नाउ दे आर स्टार्टेड मेकिंग द इंडस्ट्रीज, आफ्टर द इंडस्ट्री दे आर कन्वर्टिंग द एंटायर एरिया इनटू द अर्बन लैंड, सो दैट इज हाउ द लैंड यूज हैज बीन चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, दिस इज अ ट्रेंड, so that same trend has been happening here as well. Okay, industrialization and the globalization के चलते आपका land use जो है वो change होता जा रहा है। Now, the most important thing for this report, according to this particular news, is basically the high ecological fragility in that area. Okay, जो Western Ghat वाला area है, वहाँ पे high ecological fragility हो रही है. Now, what is that term? We will discuss it later. Okay, don't worry. Now, why it is very much more important for us to study about the Western Ghats evergreen forest loss? क्या फर्क पड़ता है हमें, हम प्लेन्स में रह रहे हैं, कोई अरुणाचल रह रहा है, कोई जम्मू कश्मीर रह रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज स्टूडेंट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, जो हम हर पॉइंट पे बात करते हैं फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा जब हमारा फॉरेस्ट लॉस होगा, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आएगा, जब हमारा फॉरेस्ट लॉस कम होगा, राइट? सो दैट इज द पॉइंट, सो वी हैव टू कंजर्व आर फॉरेस्ट, वी हैव टू कंजर्व आर फॉरेस्ट, वी हैव टू प्रोटेक्ट आर फॉरेस्ट। ओके, जो हमारे फॉरेस्ट जो थ्रेट आ रहे हैं, ओके जो हमारे फॉरेस्ट को डराया जा रहा है, जो थ्रेट आ रहे हैं उनको किनसे आ रहे हैं थ्रेट्स, एनवायरमेंट लेके नहीं आ रहा, जो ह्यूमन थ्रेट आ रहा है उनके ऊपर, उससे हमें उन्हें बचाना है। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपके फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो जो डिजास्टर्स होते हैं हमारे, वेदर इट इज द नेचुरल डिजास्टर और द ह्यूमन मेड डिजास्टर, उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी ना बढ़े, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसका कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन करना जरूरी है। ओके, so that is the importance of Western Ghats students, that it is the home of 140 mammal species, 510 bird species, 260 reptiles, 180 amphibians. That is all the important thing. That is the 25% of India's biodiversity depend on this particular area. That is the Western Ghats. This entire area, students. That is the western coast of India. Okay, so between the western coast and the Deccan Trap. Okay, Deccan Plateau and western coast के बीच में ये entire area is the Western Ghats. Okay, which is also the UNESCO hotspot. We will discuss it later as well. Okay, in the further sheets of our particular PDF. Now, what is ecological fragility, students? Ecological fragility क्या होती है आपकी? Ecological fragility refers to when an area vulnerability of an ecosystems to disturbances or damages. जब आपका कोई भी ecosystem बचे ना, what is the meaning of ecosystem? Ecosystem refers to the system in which both the living, I am writing it L, living and non-living things coexisting with a harmony. Okay. That is the ecosystem. Ecosystem means the interaction of the living organisms with the non-living or with the non-living entities of the world. Okay, कि हम किस तरीके से लिविंग लोग अपने नॉन लिविंग के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उसको आप इकोसिस्टम कहते हो। और इकोसिस्टम बहुत एफिशिएंट, बहुत हार्मनी तरीके से वर्क करता है। बट जब उस इकोसिस्टम में क्या आ जाए, उसको डर लगने लग जाए, वो वल्नरेबल फील करने लग जाए। वल्नरेबल किससे फील करेगा? डेफिनेटली ह्यूमन से करेगा, क्योंकि ह्यूमंस के पास इतनी ताकत है, दे आर द सोशल एनिमल्स who can make or upgrade the forest as well as who can destroy the forest. Okay, तो इस नेचुरल एनवायरनमेंट को, जो ये नेचुरल हमारा इकोसिस्टम है, इसको थ्रेट किससे है? ह्यूमन से थ्रेट है, उसको डिस्टर्ब होने का या फिर उसके डैमेज होने का। ओके, एंड इससे अल्टीमेटली क्या होगा? इससे अल्टीमेटली होगा आपका दैट इट विल कॉज द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जो हम ये सब पढ़ रहे हैं अपने, दैट इज द मैमल्स, 500 टाइम हमारे बर्ड स्पीशीज, रेप्टाइल्स, ओके, एम्फीबियंस, ये इसका लॉस होगा हमारे बायोडाइवर्सिटी का। एंड डेफिनेटली बच्चे, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉय होगा किसके चलते? ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते। एनवायरनमेंट चेंजेस आएंगे, हमारा नेचुरल डिजास्टर्स हमारे बढ़ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी हमारे ह्यूमन थ्रेट को लेके। इफ यू विल गिव अ थ्रेट टू द इकोसिस्टम, टू द नेचुरल फॉरेस्ट, टू द एनवायरनमेंट, अल्टीमेटली लीड्स टू द थ्रेट टू ह्यूमंस। ओके, कोई भी चीज है आप शुरू करोगे तो अल्टीमेटली आपको ही इसका भुगतान, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, रपकेशंस आपको ही देखने पड़ेंगे। Okay, so we will face, ultimately we will face the consequences. Okay, now
The next what important we have is what is the analysis. Okay, what the analysis says about this particular thing of the loss of the Western Ghats. Okay, the 5% forest loss of the Western Ghats that the Indian Institute of Science, Energy and Wetland Research Group. इसने क्या किया? It has launched the Western Ghats Spatial Decision Support System, that is also stands for the WGSDSS. किस लिए किया है? एनहेंस करने के लिए यहाँ पे गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी कि जो सरकार है वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे काम करे. देयर शुड नॉट बी एनी ओपैक इन दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, कोई भी आपको ओपैक नहीं होना चाहिए. प्लस मैनेजमेंट ऑफ द इकोलॉजिकल वाइटल सह्याद्री हिल्स, उनको प्रॉपर मतलब जो इन शॉर्ट स्टूडेंट सिंपल सी बात यह है जिस तरीके से आपका बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे लॉस हुआ है सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से, जो हमारा फॉरेस्ट लॉस हुआ है उसको हमें वापस से क्या करना है? वी हैव टू रिगेन इट. और उसको रिगेन करने के लिए हमने क्या किया है? हमने एक बॉडी बनाई है अपनी, दैट इज अ वेस्टर्न घाट स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाई है. किसको चेकआउट करने के लिए? हमारे सह्याद्री स्टूडेंट्स. वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र. ओके, इन्हें सह्याद्रीज भी कहते हैं. आपका सह्याद्रीज आर द अनदर वर्ड और द नेक्स्ट और द अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड और द हिंदी वर्ड यू कैन से और द साउथ इंडियन वर्ड फॉर द term western ghats. Okay, so that is a point here. Now what is the another important thing which is very much important about examination point of view is that is a factual thing, that is students की आपका जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये किसका पार्ट है? आपके सह्याद्रीज भी कहते हैं इन्हें. ये हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया का. among the 36 global biodiversity hotspots, वर्ल्ड में केवल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जिनमें से वेस्टर्न घाट्स एक है. तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए. और इसका 5% लॉस भी, इवन 1% लॉस भी हमारे लिए स्टूडेंट्स बहुत बड़ा कॉस्ट करता है. ओके, आपके किसी भी चीज को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कब कहते हैं? जब वहां पे आपके बहुत ज्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं. दैट स्पीशीज इंक्लूड्स द प्लांट स्पीशीज एज वेल एज एनिमल स्पीशीज. तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये हमारा. ओके, एंड इट इज अ होम to a rich and unique assemblance of the flora and fauna. So definitely because यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा plants और animals रहते हैं, unique plants and animals रहते हैं, rich है ये हमारे biodiversity में. So for that point of view, it is very important for us to conserve the and to protect the Western Ghats. Okay, so the important topic is that there has been a 5% loss in the evergreen forest cover of the Western Ghats. That is what the topics is all about. Okay, that important thing for this particular section is the हमारे फाइंडिंग्स क्या आई हैं, थ्रेट क्या क्या है उनको, प्लस किस तरीके से हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, इंडिविजुअली आप कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो. सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट points regarding the Western Ghats forest loss cover. Okay, thank you so much students for being connected with Northeast PSC. We'll again come up with the same kinds of topics. Thank you so much.